How are you all? कैसे हैं भाई सब लोग? Am I audible? Yes, sir. Good. So in the last class, we were discussing subspaces. Any doubt? No? So let me complete the last problem which I was doing. Problem number 4. Yes, sir. So let us take problem number 4, page 73. So which part I have done already? I have done A part. I have done B part. Then I did A part, E part, E part. x1 square, this one, है ना? x1 square plus x2 square plus x3 square less than equal to 1. It is done. Okay. Then I did, I think, G part also. G part is also done. Collection of all triplets such that x1 is equal to root 2 x2 and x3 is equal to thrice x2. It is done. है ना? It is a subspace as I told you because it is written in a linear form, है ना? Non-fractional form. Fraction नहीं है. So x2 can be 0 here. If x2 0, x1, x3 0. So 0 belonging to here. With this part we have already done. Last part I think it was remaining there. It was collection of all triplets, है ना? Subset of V3 such that x1 minus 2x2 is equal to x3 minus 3x2 by 2. This was the problem. So it has a linear relation between two vectors, between these three vectors. Tell, what about this? What about this? I have to check. First thing, as I told you, always check whether 0 existing or not in the set. Tell me, said, suppose I am taking this is a set as J. 0 belonging to J or not? First thing. Bilal Zafar. Yes, sir. 0 belonging to the set J or not? सर हो सकता है सर, क्योंकि वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो जब हम इन सबको मतलब वन एक साइड ले जाएंगे तो सॉल्व, क्योंकि सर x2 एक जगह है तो इसको सॉल्व करना पहले पड़ेगा। मतलब दिस सर ये 0 बिलोंग करेगा ना? Yes, So you can put, हाँ. if I am putting x3 x2 0 x1 coming 0, है ना? Or you can write in this way. This can be written as x1 minus x2, just take outside, सॉल्व करेंगे, एक साइड लेके जाएंगे। है ना? It will become 2 and this plus, so I am taking minus outside, so 2 minus 3 by 2 x2 minus x3 is equal to 0. So right hand side is giving you 0. क्यों? It is how much? x1 minus 2 to the 4 minus 3. यही तो है. So 0 belonging to J. So because 0 belonging to J, chances are there it will be a subspace. But we have to check by taking the test. So you just take two vectors, u and v. Suppose u is x1, x2, x3, and suppose v is y1, y2, and y3. So what you have to check here? Only you have to check u plus v belonging to this set or not. Plus v. Yes. So u plus v belonging to when you are having this combination is 0. है ना? u plus v means what? x1 plus y1 plus y1, हाँ. x2 plus y2 और This. x3 plus So y2. if this belonging to j, this या तो ये equal हो या ये एक ही बात है. x1 तो what should be there? x1 plus y1 minus half of x2. Minus, So yes, half sir, of half of x2 plus y2 minus
x3. x3 plus y3. This should be 0. So you can see here, if I will solve it by taking that, because this belongs to j, this belongs to j, so what I can write, you can write x1 है ना minus half x2 minus x3. Separate your x part. Similarly, separate your y part. So I can write plus y1 minus half y2 minus y3, and it is 0. It is 0 because this belongs to j. So ultimately 0. So it means what? This implies that u plus v belongs to j. Okay. Similarly, alpha u, this also belongs to j, as you can find what? x1 minus half x2. You can find here first vector minus half of second vector and Minus third vector. minus third vector. Minus alpha x. Alpha take common, so it is कॉमन ले x1 लेंगे. minus x3, which is alpha into 0 0. So that means this. So it means that j is a subspace, okay, of v3. So it was a simple process how you can check, but as I told you, for the saving on time, always check by taking firstly identity. If identity is not there direct, you can write that particular given set is not a subspace. If identity belonging, then we will check these two conditions, u plus v or alpha u. Or in a single test, you can check direct alpha u plus beta v. Okay, so this thing we have done. So next topic, you can try some more examples by yourself, taking different problems on subspaces. There are a lot of problems available for in JAM question papers, in GATE question papers. अगर आप कहेंगे तो I can take some problems from competition also, from subspaces and vector spaces if you are interested. Yes sir. sir. ठीक है, Yes, तो sir. चलो चलो तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ प्रॉब्लम्स अच्छी निकाल के रखूंगा जो कंपटीशन में आती हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है, चलो. So next topic I am going to start 3.3. It is also very important topic of this linear algebra. Article 3.3, span of a set. Span of a set. Have you heard this word before in your life? No, sir. Span word नहीं सुना कभी? स्पैन सुने सर. सुना है. nucleus स्पैन तो सर सुना है क्या होता है स्पैन, बताइए. टाइम पीरियड सर. लाइफ The स्पैन span तो of बोलते हैं time, सर. interval, or means piece of something. अच्छा, स्पैन. तो वो जो स्पैन होता है, अच्छा, दैट इज मींस यू कैन से सम, ना इफ यू आर मेजरिंग सम टाइम, है ना, दैट इज स्पैन. ठीक है, चलो. तो यहाँ पर स्पैनिंग से मतलब क्या है? इट इज नॉट डेड स्पैन, हियर इट इज अ मैथमेटिकल टर्म स्पैन. आई विल टेल यू. बिफोर डिफाइनिंग स्पैन, I will define one more definition which is required here. It is your definition 3.3.1, page number 74. 3.3.1, है ना? So suppose you have some vectors u1, u2, un. Suppose you have given some vectors u1, u2, un, है ना? These are some vectors given to you. ठीक, कोई भी vectors नहीं है. अच्छा, हम इन्हें वेक्टर्स कह रहे हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास आल्सो, बिकॉज दे आर द एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस, है ना? यू नो दिस थिंग, है ना? व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ वेक्टर? बिकॉज इट इज अ वेक्टर, एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस, या बिकॉज दे आर एक्चुअली अ वेक्टर? So they are element of they vector are space. elements of vector space. यस, है ना, बिकॉज दे आर एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इज अ वेक्टर, है ना? जैसे आई टोल्ड यू कि इफ आई एम टेकिंग कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, सपोज, है ना,
where A, B, C, D belongs to R, तो this also forms a vector space. तो यहाँ पर भी मैं अगर कोई एलिमेंट लूंगा तो मैं उसको वेक्टर बोलूंगा, है ना. Here your U belongs to this का मतलब क्या होगा अगर ये सेट A है कि U is a 2x2 मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1, तो इट इज अ वेक्टर बिकॉज इट इज अ एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस. अब यहाँ पे आप सोचेंगे U इज अ वेक्टर, तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन इट इज अ एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, दैट्स व्हाई. सो लेट अस टेक सपोज U1 U2 UN, है ना, be some given vectors, let be some given vectors, then an expression alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 and so on plus alpha n UN. This expression is called a linear combination. Okay, in short I will be writing LC, linear combination of the vectors U1 U2 and so on UN, where these alpha 1 alpha 2 and so on alpha r, they are the scalars. Are you getting my point? So if you have some vector, उसको just write in this form. उसे अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, okay, you have a vector and just write in a combination. तो क्या करा है आपने? Why it is linear combination? You are multiplying by some scalars and writing as an expression form, है ना. You are just adding the vector. You are taking scalar product of the vectors and vector addition. तो ये combination बन गया. It is called linear combination. Is it clear? क्यों भाई? Yes, sir. ये linear Yes, sir. combination है. अब ये linear combination में alphas they are coming from scalars, यानी कि they are coming from real numbers. तो अगर आपके Real पास numbers. सपोज करो कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं, you have given some vectors, तो how many linear combination are possible? How many linear combination are possible? कितने linear combination बना सकते हो आप अल्फा 1 अल्फा 2 को चॉइस देके है? सर बहुत सारे सर, उसमें Infinite. कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं हम सर. यस, है ना, बहुत सारे को मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट कहते हैं. Yes. तो यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन. मैं अल्फा 1 अल्फा 2 को कुछ भी दे सकता हूँ, 1 0 1/2 4 एनीथिंग. तो एक्चुअली क्या हुआ कि इफ यू हैव सम वेक्टर, तो यू कैन राइट इन इनफाइनाइट मैनी वेज एनी वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन. है कि नहीं है? क्यों भाई? तो वही जो आपका सेट बनेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड बेसिकली स्पैन ऑफ द सेट. ओके, ये तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, alpha 1 x1, it is an expression. It is also called a linear combination of the set. सपोज कोई सेट, अगर मैं इस वेक्टर को सेट S से लिख दूं, U1 U2 UN, तो हम ये भी कहते हैं कि इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट, है ना. और इसको हम क्या कहते हैं? इस लीनियर कॉम्बिनेशन को भी, इफ एज द सेट इज फाइनाइट, if the set S is finite, the linear combination is called a finite linear combination. A finite linear combination, है ना. मैं ये नहीं कह रहा कि लीनियर कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनाइट है. आई एम सेइंग कि अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट में, तो जो आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, है ना, वो आपका फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा. एक जो हम लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट होते तो क्या होता? आप क्या लिखते? आप अल्फा 1 U1 अल्फा 2 U2 एंड सो ऑन एंड लिख के छोड़ देते.
तो उस केस में वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर सेट आपका फाइनाइट है, जैसे मैं सपोज सेट आपका ले लूँ, 2 वेक्टर्स ले लूँ 1 0 0 1, ये आपका एक सेट है, सबसेट ऑफ V2। V2 क्या होता है, R2। तो यहाँ पर अगर आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना चाहें, मान लीजिए कि मैं ले लूँ 2 × 1, 0 प्लस 3 × 0, 1, है ना, ये क्या बन जाएगा आपका बेसिकली 2, 3। तो ये एक आपका एक फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। एक इस तरीके से यू कैन हैव इनफाइनाइट, मैं 2 3 5 कुछ भी ले लूं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट डेफिनेशन एक्चुअली व्हाट, spanning. So next definition, in the same page 74, let S be a subset of V, subset of a vector space V। किसी भी V का सबसेट है, देखो आई एम नॉट सेइंग सब स्पेस, सबसेट है वेक्टर स्पेस V का। then the span of S is the collection of all finite linear combinations of S। okay, and it is denoted by this symbol, ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया है, इट इज द सिंबल ऑफ स्पैनिंग सेट। तो व्हाट इज द स्पैन सेट? स्पैन सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस। फाइनाइट क्यों है? क्योंकि ये जो अल्फा है आपके, दे आर रनिंग फ्रॉम 1 to n या 1 to k, जितने वेक्टर होंगे यहाँ पे अल्फा कितने हैं, 2 ही आपके पास, अल्फा 1 1 0 प्लस अल्फा 2। तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट होना चाहिए, तो है ना। फाइनाइट हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ, तो स्पैन सेट क्या हुआ इसका मतलब, आई कैन से दैट मीन्स if S is some set of vectors, मान लो u1 u2 and so on un, है ना, तो span set will be denoted by a set, collection का मतलब क्या होता है, set of all linear combinations where alpha 1 alpha 2 they are scalars। तो span set is the collection of all finite linear combination। तो मुझे ये बताओ कि व्हाट अबाउट स्पैन सेट? स्पैन सेट एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन स्पैन सेट? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट होगा? क्यों भाई पीयूष शर्मा? यस सर। स्पैन सेट इज इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट? सर इनफाइनाइट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। यस, क्योंकि आपके पास अल्फा जो है आर से आ रहा है और आर आपका इनफाइनाइट सेट है ना। तो जब आर इनफाइनाइट सेट है तो इसलिए इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट। इज इट क्लियर? यस सर। है ना। और आपको पता है कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वो कभी सब स्पेस नहीं बन सकता। बन सकता है कोई फाइनाइट सेट जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हो? नो सर। लेकिन अगर सेट इनफाइनाइट है तो वो सब स्पेस बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना अल्फा यू बिलोंग्स टू सेट। तो अल्फा यू का मतलब क्या होता है कि अगर आपने फाइनाइट करा, इसके अलावा आपने बाउंड्री लगा दी, जैसी बाउंड्री लगाई अल्फा यू बिलोंग्स टू सेट एस वाली प्रॉपर्टी हमेशा आपकी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंडीशन विल नॉट होल्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो इसका मतलब हम ये भी चेक करेंगे कि क्या स्पैन सेट इज अ सब स्पेस। जिसका आंसर है अफर्मेटिव, दैट मीन्स यस, वो हम आगे प्रूव करेंगे। स्पैन सेट इज ऑलवेज अ सब स्पेस, इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। चाहे एस आपका सबसेट हो या ना हो, लेकिन स्पैन सेट हमेशा वेक्टर स्पेस होगा।
आप देख भी सकते हैं, अगर मैं सारे अल्फा को 0 ले लूंगा तो 0 बिलोंग्स टू स्पैन एस आ जाएगा, है ना। और हर वेक्टर के लिए मैं नेगेटिव ले सकता हूँ, यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विल होल्ड नेचुरली। दिख सकता है आपको डायरेक्ट कि स्पैन सेज आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। क्यों मैं बिलाल जफर, यस सर, यस सर। है ना। स्केलर 0 कर देंगे, वो बिलोंग टू आर होगा, और Yes. माइनस भी ले सकते हैं, माइनस Yes. u1 माइनस। यस, तो स्पैन सेट हमारा क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बट इट इज एन इनफाइनाइट सेट, है ना। और इनफैक्ट आई विल प्रूव इन द थ्योरम कि स्पैन सेट इज अ वेक्टर वेक्टर स्पेस, चाहे एस सबसेट एस आपका सब स्पेस हो या ना हो, एस अगर सबसेट है तब भी उसका स्पैनिंग सेट वेक्टर स्पेस बन जाएगा। चलो, तो एक पहले स्पैन सेट लिखते हैं। चलो, लेट अस टेक वन एग्जांपल। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। लेट V इज अ वेक्टर स्पेस V2। V2 का मतलब आपको पता है ना, V2 क्या है आपका R2, नॉर्मली दिस इज योर V2, R2 है, यस सर। है ना, ये ध्यान रखना। XY प्लेन। हाँ, बस नोटेशन है, नोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, कीप इन माइंड। इफ यू अंडरस्टैंड द नोटेशन, समझ लो कि आपने आधे से ज्यादा मैथमेटिक्स समझ ली। ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, V2 कलेक्शन जो हम यूज करते हैं। तो लेट्स सपोज V इज इक्वल टू V2 एंड S इज अ, जो मैंने अभी लिया था उसी को लिख रहा हूँ, 0 1। तो ये V2 का सबसेट है कि नहीं, ये बताओ। सबसेट तो है भाई, V2 के अंदर आपके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो 1 0 0 1 एलिमेंट्स क्या होगा, ये आपका एलिमेंट ये हो गया 1 0, सपोज इट इज योर U1, क्यों, और 0 1 क्या हो गया, ये U2 है, सपोज 0 1। तो अगर मैं इन दो एलिमेंट को करेक्शन कर लूं तो ये V2 का तो सबसेट होगा, सबसेट। अरे सबसेट है या नहीं है? यस सर, है। यस सर। तो यस नो तो बोलते रहो यार, थोड़ा सा मुझे इंक्रेज होता रहेगा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो। मैं आपको देख तो रहा नहीं, तो सुन रहा हूँ। तो इट इज अ सबसेट ऑफ V2, ओके। देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, सपोज इसको मैं U1 U2 कह दूं, ये चलो 1 0 0 1 ही लिख लो, इस लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, अल्फा 1 0 प्लस बीटा 0 1। 0,1 इसको आप सॉल्व कर लो जरा, कितना आएगा कंपोनेंट वाइज एडिशन, अल्फा इंटू 1, ये क्या आ जाएगा आपके पास, पहले अल्फा की इंटू करी हमने अंदर, फिर बीटा की करी, तो 0 बीटा। अब इसे कंपोनेंट वाइज एडिशन कर दिया, तो अल्फा प्लस 0 इज अल्फा, 0 प्लस बीटा इज बीटा। ये आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये आपका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन था, तो इसका मतलब इफ आई वांट टू, इट मींस इफ आई वांट टू राइट स्पैन ऑफ एस, तो स्पैन ऑफ एस विल बी व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ये तो लिख रहे थे आप, collection of all linear combination such that alpha beta belongs to R. So it is nothing but it is just a, ये आपने solve करा, it is alpha comma beta where alpha beta belongs to R. तो ये स्पैन सेट आपका हो गया, इसमें अल्फा बीटा टाइप के एलिमेंट होंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्पैन एस में एक एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ये तो ये नोटेशन है ना। Yes. अल्फा बीटा 0 ले लूंगा मैं तो 0 इज देयर, if I will take 1 0 or -1 0 तो inverse भी there, it has all the elements, okay। तो span S is the collection of all these, ये मैंने particular example लिया है अल्फा बीटा, and span S can also be written as, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर को भी हम ये भी लिख सकते हैं, स्पैन ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर्स को हम ले लें अंदर, और ये सेट है ना। ध्यान रखना कर्ली ब्रैकेट जो होता है ये हमेशा सेट का नोटेशन होता है, और ये जो बिग ब्रैकेट है ये स्पैन का नोटेशन है ना। सो हियर यू कैन सी स्पैन एस इज द सब स्पेस ऑफ V2, इन फैक्ट जो मैं अभी बात कर रहा था, है ना। कैसे है Yes, ये sir. आपको मैंने अभी बताई दी, आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, इट इज योर एक्सरसाइज, यू कैन वेरीफाई कि स्पैन एस सब स्पेस है V2 का, है ना। तो in fact we have the theorem, it is not only true for this particularly V2, in fact it is true for any span which we have a theorem, which is your theorem
3.3, page number 74. It is the theorem, very important theorem. Let S be a non-empty subset of a vector space V, then span S is a subspace of V. अगर S नॉन एम्प्टी सबसेट है तो स्पैन S इज अ सब स्पेस ऑफ V. इस थ्योरम को हम जनरल प्रूव करेंगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ा दिखा दिया पीछे. यू हैव ऑलरेडी विजुअलाइज दिस थिंग कि ये आपका सब स्पेस है ना. लेकिन आई वांट टू प्रूव इट इन अ थ्योरम एंड आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर यू वांट टू प्रूव यू हैव टू टेक अ जनरल स्टेप्स. क्या प्रूव करना पड़ेगा इसमें हमें बताइए. हु विल टेल हाउ टू प्रूव? सर वही u plus v belong to s और हाँ, yes. alpha into u वाला वही Exactly. condition. Yes, you know this thing. Okay, we have already a theorem, so I will use the theorem. So that is the जब theorem. भी सब स्पेस प्रूव करना है तो वही वाला कंडीशन लगाएंगे. Yes, exactly. So by the theorem 3.2.2, ये तो थी, है ना? We have to show. First thing is, if uv belongs to span of S, then u plus v belongs to span of S. है ना? We have to show that. And second, if u belongs to S, alpha is any scalar, then alpha u belongs to span of S. Okay? ये हमें प्रूव करना इन जनरल. So let us take one side, left side लेते हैं, right प्रूव करते हैं. So पहले I am proving first. Let uv belongs to span of S. सर सेकंड वाली कंडीशन में स्पैन एस को बिलोंग करना चाहिए ना यू. नहीं, अल्फा तो रियल रहेगा ना हमेशा. नहीं सर, ये एल यू बिलोंग्स टू एस लिखा है वहाँ. ये स्पैन S है. हाँ, ठीक है, स्पैन S होगा, करेक्ट. So u belongs to span S, then alpha u also belongs to span of S. So you know, अब अगर uv belongs to S, it means what? U can be written as a linear combination of the vectors of S. क्यों भाई? If uv belongs to S, then I can write u as a linear combination of some un. कुछ ना कुछ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा S के. यहाँ पे आप लिख देंगे for some scalars alpha i's and some vectors ui belongs to S, है ना. And similarly you can write v will be what? V will be some different scalar. अब alpha 1 नहीं लूंगा मैं, है ना. V will be maybe some beta 1 u1 and so on, beta n. सपोज यहाँ u1 नहीं, यहाँ v1 ले लो, वेक्टर्स भी चेंज कर सकते हैं हम. आई एम राइटिंग इन मोर जनरल वे. सो आई एम टेकिंग सम बीटा 1 v1, कुछ और वेक्टर कॉम्बिनेशन, प्लस बीटा 2 v2 एंड सो ऑन, बीटा m ले रहे हैं vm, है ना. भाई S के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो कुछ भी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया हमने. एक u होगा, एक v होगा, एंड दे आर प्योरली आर्बिट्रेरी फॉर सम scalars beta j's and vj belongs to S. Some vectors vj belongs to S. So what about their combination? You know, it is very simple exercise. You know कि अगर दो लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उसका सम भी तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही आएगा. बताइए. यस सर. Vm, and this is again a linear combination.
क्योंकि u1 u2 un are the vectors of S, v1 v2 vn are the vectors of S, so ultimately it is a linear combination, which is again you can say, है ना, you can write which is again a linear combination of the vectors of S and implies that u plus v belongs to span of S. सिंपल एक्सरसाइज थी है ना? इज इट क्लियर? देखो मेरा u और v Yes. जो है, डोंट गेट कंफ्यूज, u मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ, v मैं ऊपर से हल्का टर्न कर देता हूँ, है ना? इट इज माई u एंड इट इज माई v, कीप इन माइंड, कभी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आई एम यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी वेरी ऑफन. नेक्स्ट थिंग इज अल्फा u. Similarly you can show easily. Similarly alpha u can be written as alpha 1 u1 plus अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही तो होगा, अल्फा 2 u2 एंड सो ऑन, अल्फा n un which is again alpha 1 u1. अब ये अगेन सम स्केलर है ना, which is again a linear combination of the vectors of S. So this implies that alpha u belongs to span of S, and hence you got span S is a subspace of V, है ना, V लिया. So you got it कि span S is always a subspace, है ना? इसे as a remark you can write as a remark. Span S is always a subspace and hence vector space. Subspace का vector space तो है ही, है ना? Subspace of V, है ना? S is subset or not, है ना? S is subspace, है ना? S क्या लिखूं इस बात को, हाउ टू राइट कि S आपका सबसे सब स्पेस हो या ना हो, लेकिन स्पैन S इज ऑलवेज अ सब स्पेस, है ना? तो स्पैन S इज ऑलवेज अ सब स्पेस ऑफ V. पॉइंट में लिख दीजिए सर, याद हाँ. रखने में आसानी. चलो, है ना? तो यहाँ पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, ये बिलाल जफर ने सही बात कही, ये लिख दे रहा हूँ, इफ S is not a subspace of V, then still span S is a subspace. अगर S सब सबसेट आएगा शायद. है, सबसेट. नहीं नॉट If लिखा S is ना, not. नॉट अ सब स्पेस. S आपका सब स्पेस नहीं है, तब भी स्पैन S सब स्पेस होगा V का, ठीक है? Okay sir. Yes sir. अगर S आपका सब स्पेस है तब तो स्पैन S होगा ही होगा, लेकिन अगर S सब स्पेस नहीं है तब भी स्पैन S हमेशा सब स्पेस होगा. क्यों? क्योंकि स्पैन S इज ऑलवेज एन इनफाइनाइट सेट. ये भी मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, स्पैन S is an infinite set. इनफाइनाइट सेट है ना? आपने देखा भी जो मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पर S आपका सबसेट था, सिर्फ जो मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, है ना? ये जो S था इसमें जीरो नहीं है, देखो ना जीरो है ना इनवर्स है, तो S सिंपल सबसेट था, लेकिन स्पैन इसका सब स्पेस बन गया. अच्छा, और नॉन ट्रिवियल सब स्पेस always contains an infinite number of elements. ये भी एक रिमार्क में लिख दे रहा हूं, any
नॉन ट्रिवियल सब स्पेस ऑलवेज कंटेन्स, ये आपको पता है, बात बता चुका हूं मैं। एनी नॉन ट्रिवियल सब स्पेस, नॉन ट्रिवियल क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो V होता है V नॉट, है ना, ये आपका क्या होता है V नॉट, इट इज अ सर ट्रिवियल सब स्पेस। V नॉट में क्या था, Zero. जीरो है ना, हाँ पॉइंट आ रहा था, पॉइंट। सिर्फ 0 आ रहा था, तो ये V नॉट था आपका, तो इसमें तो आपके पास जो है 0 ही रहेगा हमेशा, है ना। इसका स्पेन सेट क्या आएगा देखिए, व्हाट अबाउट स्पेन सेट ऑफ दिस V नॉट, अगर मैं इस सेट 0 का स्पेन सेट ले लूं, क्या आएगा, करेक्शन ऑल कॉम्बिनेशन वेयर अल्फा, अल्फा 1 0, तो ये क्या तो सब आएंगे, जीरो ही हो जाएगा। तो सिर्फ 0 ही आएगा, है कि नहीं है। यस। तो सिर्फ ये आपका जो ट्रिवियल है, इसके स्पेन सेट में तो क्या आएंगे फाइनाइट एलिमेंट कितने 1। लेकिन अब भी अगर आप देखिए कि स्पेन सेट अब भी आपका सब स्पेस ही है कि नहीं है ये, क्योंकि 0 आ रहा है सिर्फ, तो स्पेन एस इज ऑलवेज सब स्पेस, और सिर्फ एक यही एक ऐसा स्पेन सेट है जो हमेशा फाइनाइट नंबर एलिमेंट रखेगा, कौन सा, ये ट्रिवियल वाला। इसके अलावा हर स्पेन सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो एनी नॉन ट्रिवियल सब स्पेस, यानी कि अदर देन V नॉट, ऑलवेज कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। कोई आपसे अगर पूछता है कि भाई हमें कोई फाइनाइट स्पैनिंग सेट बताइए, तो इट इज द ओनली, ठीक है। या कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई आई एम गिविंग यू सम सेट एस, मुझे कोई सब स्पेस बताओ, तो आपका क्विक आंसर होगा सर स्पैन ऑफ द सेट इज अ सब स्पेस। ये क्विक रेस्पॉन्स होते हैं। somebody ask कि आई एम गिविंग यू वन सेट एस, मुझे कोई सब स्पेस बना के दिखाओ इस सेट के एलिमेंट से, आप क्या कहेंगे कि सर स्पैन ले लीजिए, वो सब स्पेस होगा। ये क्विक आंसर हो जाएगा आपका, बाकी तो आप तलाश करते रहो बहुत सारे। ओके, अच्छा, बाय कन्वेंशन वी टेक, क्लास ओवर हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट क्लास मंडे में स्टार्ट करूंगा। फाई इज इक्वल टू V नॉट, ये हम बाय कन्वेंशन लेते हैं, ये कन्वेंशन माना हुआ है कि अगर कोई आपके पास फाई है, फाई का मतलब ये भी तो एक सबसेट है V का, सबसेट है V का नहीं, तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द स्पैनिंग सेट ऑफ फाई, तो उसको हम V नॉट लिख देते हैं, ये बाय कन्वेंशन है, ठीक है। क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ कि नो लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हम उसे 0 लिख देंगे, तो ये एक कन्वेंशन है, बाय द कन्वेंशन। स्पैनिंग सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज V नॉट, V नॉट क्या है आपका, वही, ओके। क्योंकि स्पैन सेट इज ऑलवेज अ सब स्पेस, तो आप क्या लेंगे कि इसको मैं 0 ले लूंगा सिर्फ। 0 का मतलब क्या हुआ कि you don't have any element and you are taking scalar sum 0, so I am taking